Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second video of our miscellaneous PYQ series where we are going to see yet another 10 questions along with its explanation. If you are already a viewer, you must have gone through our first video where we not only looked into 10 different questions but also its in-depth analysis of those concepts. But if you are new to the channel, hello, my name is Sunaina and this is a comparatively new literature channel where I am trying to go parallel with the new NET syllabus, putting up updated new content every day. So if you like my style of teaching and also my efforts, do consider liking the video and also subscribing to my channel. So without wasting any further time, let's get started with the video. So let's take a look at our first question. What according to Raymond Williams is the right description of the term cultural materialism? So our first question itself is from the cultural theory section. This section is very important as a lot of questions are now being put up from this section. Raymond Williams, if you know, is the founding member of our contemporary cultural studies and also the Birmingham Center. He belonged to the British Marxist group and he has given many theories and contributed towards the cultural field. So what according to him was cultural materialism? Let's take a look. The cultural effect that religion has in social life, the political effect that matter has in social life, the material effect that culture has in wider social life, or the effect of social life in cultural situations of uncertainty. नाउ कल्चरल मटीरियलिस्ट एक आपका स्कूल ऑफ थ्योरी था जो मानता था कि अगर आपको किसी सोसाइटी के कल्चर के बारे में जानना है तो उसमें प्रेवलेंट जो मटेरियल्स घूम रहे हैं या जो मटेरियल्स हैं उसकी अगर आप स्टडी करेंगे तो उस सोसाइटी के ह्यूमन कल्चर के बारे में आप बहुत अच्छे से जान सकेंगे. सो लेट्स टेक अ लुक एट द कॉन्सेप्ट्स. Raymond Williams was a Welsh social writer who contributed towards Marxism, cultural studies and cultural materialism. इनका ये जो term है cultural materialism is from the book Culture and Materialism which was published in 1918. कभी कभी ऐसे भी questions put up हो जाते हैं कि this particular term by Raymond Williams was a part of which of the book, so you must also remember this. As I told you, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि the best way to analyze a human culture is to examine its prevalent material conditions of the society. Like वहाँ का climate क्या है, लोग किस टाइप का food consume करते हैं, किस टाइप की supply होती है और कितनी supply होती है and so on. So if you want to know about a particular cultural society, then you must look at the type of materials that they are consuming. आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल मटीरियलिज्म का रन्स पैरेलल टू न्यू हिस्टोरिसिज्म. ये भी एज आई हैव टॉक्ड इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, ये एक लिटरेरी फील्ड है जो न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट है कि आपके एक टेक्स्ट में सिर्फ फॉर्म को और रिटोरिकल डिवाइसेस को नहीं देखना होता है, उसके ऑथर उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से भी उसका मतलब होता है. सेम गोज फॉर योर कल्चरल मटीरियलिज्म की. अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट जानिए, उसको उस सोसाइटी के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में आप जैसे ही जानेंगे आपको उसके ह्यूमन कल्चर के बारे में पता चल जाएगा. ओके, सो दिस टर्म वॉज गिवन बाय रेमंड विलियम्स, बट again this question can also arise, but this term was popularized by popularized by Jonathan Dollimore and Alan Sinfield. Okay, so ये term आपका रेमंड विलियम्स ने दिया था cultural materialism, but it was popularized by these two persons. I hope the term is clear to you. Moving forward, we have our answer. What according to Raymond Williams is the right description of the term cultural materialism? It is the material effect that culture has in wider social life. Okay, so I hope this question is clear to you. Let's move on to our next question. From whom does Gayatri Chakravarti Spivak borrow the term subaltern? अब इस क्वेश्चन को करने का देर आर टू ऑल्टरनेटिव्स. या तो आपको गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के बारे में पता होना चाहिए या जिसने ये टर्म कॉइन किया आपको उनकी एनालिसिस होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स सी हु कॉइन्ड दिस टर्म. सबएल्टन सबसे पहले तो लेट अस सी कि होता क्या है. पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में सबएल्टन जो टर्म था ये उन लोगों को दिया था विच वर कंसिडर्ड लाइक अंडर क्लास जो पीपल थे हमारी हिस्ट्री में जिनका नाम नहीं लिया गया. ये टर्म उन लोगों को डेजिग्नेटेड किया गया है जो कि आपकी इंपीरियल कॉलोनी या डोमिनेटेड सोसाइटी से सोशली, पॉलिटिकली या ज्योग्राफिकली एक्सक्लूड कर दिए गए हैं एंड वो मेन डोमिनेंट स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं बनते हैं. ओके, सो दिस टर्म वॉज गिवन बाय एंटोनियो ग्राम्स्की
to identify the cultural hegemony that excludes and displaces specific people. As I told you, कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे एंटोनियो ग्राम्स्की ने बात किया है. You must also know कि एंटोनियो ग्राम्स्की ने कल्चरल हेजेमनी के बारे में बात की है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैसे डोमिनेंट सोसाइटी का आपकी वर्किंग क्लास सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड हाउ द डोमिनेंट सोसाइटी इफेक्ट्स द चॉइसेस, डिसीजंस एंड बिलीव्स ऑफ द वर्किंग क्लास सोसाइटी ईदर बाय फोर्स और बाय कंसेंट. ओके, सो सबअल्टर्न भी आपका थोड़ा बहुत मिलता हुआ टर्म है. ही डिक्लेयर्ड दैट सबअल्टर्न was the subjected underclass in a society and on whom the dominant power exerts its hegemonic influence. As I told you कि इस कॉन्सेप्ट के तहत सबअल्टर्न वो लोग हैं, वो सब्जेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिन पे हेजेमनी का इन्फ्लुएंस है. दैट मीन्स कि जिन पे डोमिनेटेड सोसाइटी का बहुत इन्फ्लुएंस है. नाउ दिस टर्म वॉज टेकन बाय चक्रवर्ती स्पीवक फ्रॉम एंटोनियो ग्राम्स्की, एंड दिस is a very important work of hers which is known as Can the Subaltern Speak. आप सबने अपने MA में इसको ज़रूर पढ़ा होगा. This is an essay where she talks about how subaltern or the subjugated people have no voices of their own, या फिर उनको हिस्ट्री में कोई जगह नहीं मिली है. Okay? Let's look at the answer, which is this term is taken by Antonio Gramsci. Now subaltern एक टर्म आ गया था, so I thought why not give you a complete overview of this field also. So our next question is of subaltern studies. Kindly take a look. Which of the following does the subaltern studies project content? अब ये questions ऐसे questions होते हैं जो बच्चों को confuse कर देते हैं क्योंकि उनको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है. आई हैव अ हिंदी एक्सप्लेनेशन फॉर यू पीपल. सबअल्टर्न स्टडीज परियोजना निम्नलिखित में से किसका विरोध करती है? नाउ इफ आई गो टू द क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन को पढ़ के इफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट, यू आर इमीडिएटली गोइंग टू नो द आंसर कि इसका मतलब क्या है. बट अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, देयर आर a good number of chances कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. सो देर आर सो मेनी टाइम्स जब NTA आप लोग को इस तरीके से परेशान करता है ऐसी हाई क्लास क्वेश्चंस देके. बट देन दिस इज़ ओनली द कॉन्सेप्ट. अगर सबको ही लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो सभी पास हो जाएंगे. ओके, लेट्स टेक अ लुक. विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सबअल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट कंटेंट? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबअल्टर्न स्टडीज है क्या. सबअल्टर्न टर्म के बारे में हम लोग ने देख लिया. लेट्स टेक अ लुक एट सबअल्टर्न स्टडीज. Subaltern studies emerged in 1982 as a series of journal articles published in Oxford University Press in India. Oxford University में आपके कुछ group of Indian scholars of the West पढ़ाई करने गए थे, and what they did was they wanted to reclaim their history. Reclaim का मतलब है जो आपके हाथों से खो चुका है उसको वापस से रिकवर करना. हिस्ट्री को क्यों रिक्लेम करना चाहते थे? क्योंकि इन ग्रुप ऑफ इंडियन स्कॉलर्स का मानना था कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन हिस्ट्री है उसको सिर्फ डोमिनेटेड आइकन्स के या इलाइट कल्चर के आइकन्स को ही सिर्फ दिखाया गया है, एंड हमारे जो पीजेंट्स थे या हमारे जो लेबरर्स थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हिस्ट्री को दिखाया ही नहीं गया है, एंड हेंस दे वांट टू रिक्लेम देयर हिस्ट्री, ऑल्सो गिविंग them a name, also giving them recognition कि हिस्ट्री आपकी सिर्फ इन इलाइट कल्चर को नहीं बिलोंग करती है. जो आपके हीरोज है सिर्फ उनको बिलोंग नहीं करती है, अकेले सिर्फ उन लोगों ने जंग नहीं जीती थी, बट ऑल्सो दीज लेबरर्स और द सब्जुगेटेड पीपल वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दोज हिस्ट्री. ओके, सबअल्टर्न स्टडीज ये देखती हैं. स्कॉलर्स ऑफ द सबअल्टर्न होप टू ब्रेक अवे फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द elites and the Eurocentric bias of the cultural imperial society. They wrote against the hysterical colonial legacy which was elite centered. इनका ये मानना था कि आपकी जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री दिखाई गई है वो इलाइट सेंटर्ड है, मतलब कुछ ही हीरोज को दिखा दिया गया कि इनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, इनकी वजह से हमारा इंडिया फ्री हो पाया, जो इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम था, बट ऐसा नहीं था. ओके, द प्राइमरी लीडर वॉज रंजीत गुहा. क्या पता ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ भी जाए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड. ओके, रंजीत गुहा इसके लीडर थे, एंड आपकी जो गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक थी ये भी आपकी एक लीडिंग स्कॉलर थी. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ओके,
लेट अस सी द आंसर। सो इसका आंसर है आपका सबाल्टर्न स्टडीज़ किसका विरोध करता था? ट्रेडिशनल हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट सेलिब्रेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्ट आइकन्स की कुछ सिलेक्टेड आइकन्स को ही आपका सबाल्टर्न स्टडीज़ जिसका विरोध कर रहा है, सिर्फ हमारी ट्रेडिशनल हिस्ट्री सिर्फ उनको ही सेलिब्रेट कर रही है। अनदर ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी हाईलाइट्स द डोमिनेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ डोमिनेंट लोगों को दिखाया है कि इन लोगों ने इतना बलिदान दिया, दे वर द आइकन्स, दे वर द हीरोज, बट ऐसा नहीं था। देयर वर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व जिनकी वजह से इंडिया अटेन्ड फ्रीडम। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू। मूविंग फॉरवर्ड, Who among the following belong to the Chicago School of Critics? Now ये आपका क्वेश्चन आ जाता है लिटरेरी मूवमेंट से। लिटरेरी मूवमेंट से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ईदर दे आस्क यू द नेम ऑफ द मेंबर्स और दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्रोनोलॉजी विच वी ऑलरेडी सॉ इन आवर प्रीवियस फर्स्ट वीडियो। ओके, सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स कौन थे। लेट्स टेक अ लुक। Chicago School of Critics of Literary Criticism began at the University of Chicago in 1930s and lasted up till 1950s. Now, it was also called Neo-Aristotelian. अब आपको जैसे ही ये टर्म आपके सामने आ गया तो कुछ पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। लाइक अवर ब्रिटिश सेक्शन में एक टर्म आता है नियो क्लासिकल, तो वो हमारे कुछ ऐसे न्यू क्लासिकल राइटर्स हुए थे जो हमारे प्रीडिसेसर्स दैट इज क्लासिकल्स को फॉलो कर रहे थे। सेम आपके न्यू अरिस्टोटेलियन भी हैं। इनका दे पुट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट, कैरेक्टर एंड जॉनरा, कि हम लोग को इनके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। एंड व्हाट द न्यू राइटर्स आर राइटिंग इन अ वेरी लूज, इन ब्लैंक वर्ड्स एंड कुछ भी दे आर हैविंग देयर सब्जेक्ट ऑफ कंटेंट, वो नहीं होना चाहिए। ओके, इट वॉज पार्टली अ रिएक्शन टू न्यू क्रिटिसिज्म। अगेन अभी हम लोग ने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि हमारा न्यू हिस्टोरिसिज्म इज ऑल्सो अगेंस्ट न्यू क्रिटिसिज्म। सो लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्वेश्चंस को, टर्म्स को, इवेंट्स को लिंक करने आना चाहिए, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ओके, Chicago critics accused new critics of being too subjective and placing too much importance on irony and figurative language, जैसा कि we have already discussed earlier. Ronald Salmon Crane is considered the founder of the Chicago Aristotelians. Please do keep a note of him. And ये इनके कुछ group of other literary figures थे. Notable works in the Chicago school include Critics and Criticism, Language of Criticism, and Structure of Poetry and the Rhetoric of Fiction. I thought of including these works कि कभी इसमें से भी question अगर आ गया तो. So these are the names. So according to the members given to us, R.S. Crane हमारे बन जाते हैं and Elder Olson बन जाते हैं. Okay, I hope this is clear. Moving forward. Who among the following posits the tradition of great writers as an inescapable fact and takes the ambivalent position of considering it as both a blessing and a curse? अब ये थोड़ा सा आपका क्लिक बेट टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे ही बच्चा देखेगा यहाँ पे ट्रेडिशन है और वो क्वेश्चन में आंसर में देखेगा FRUS, वो उसको फटाफट क्लिक कर देगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हो जाएगा आंसर गलत, क्योंकि आपने सिर्फ ट्रेडिशन पढ़ा, FRUS देखा, आपने क्लिक कर दिया। ओके, सो चिल्ड्रन यू मस्ट बी एबल टू सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपका NTA नेट पुटअप कर रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो बच्चे पुराना कंटेंट पढ़ रहे हैं, पुराने सिलेबस को ही फॉलो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। आपका NTA नेट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। दे आर आस्किंग एक्सट्रीमली डिफरेंट क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये 2018 के बाद से हैं। 2018, क्योंकि उसके बाद आपका NTA ने टेक ओवर कर लिया था एंड I have done an in-depth analysis of your question paper and I'm doing that from so many months and I'm able to see कि आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बट पीपल आर स्टिल पुटिंग अप देयर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू पीपल। अगर आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हो देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने हैं, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनकी एनालिसिस करिए और अपना कंटेंट, फिर अपना सिलेबस उसके हिसाब से बनाइए। डोंट जस्ट फॉलो द ओल्ड कंटेंट। ओके, हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा एक और राइटर था जिसने ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट राइटर्स के बारे में बात की है। ओके, सो इट वॉज हेरोल्ड ब्लूम। हेरोल्ड ब्लूम का ये एक टर्म आता है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टर्म।
ये इन्होंने दिया था अपनी बुक द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, अ थ्योरी ऑफ पोएट्री। इस थ्योरी के थ्रू इन्होंने बताया है कि आपके जितने भी न्यू राइटर्स होते हैं उनके ऊपर उनके प्रीडिसेसर्स का इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज आप अगर एक न्यू राइटर है, आप पुराने राइटर्स को पहले पढ़ेंगे, आप किसी न किसी राइटर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं फिर आप काम लिखते हैं तो आपके काम में उनकी एक झलक देखने को मिलेगी। इसी बात को इन्होंने एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस बोला है कि ऐसे में फिर आपके ऐसे लिटरेरी ट्रेडिशन में ये एक ऐसे ट्रेडिशन का पार्ट बन जाते हैं आपके न्यू राइटर्स, स्पेशली द 19th सेंचुरी राइटर्स, जिनके वर्क्स में आप अपने प्रीडिसेसर्स की झलक देख पाएंगे, विच इज़ अ ब्लेसिंग ऑल्सो कि आपको गाइडेंस मिलती है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ कर्स क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। A perfect example of this will be Tiger Shroff was a new actor which came into Bollywood. उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि when he was growing in his growing years वो जैकी चैन को बहुत देखा करते थे, he used to consider him as his idol, and वो ऋतिक रोशन को बहुत फॉलो करते थे। तो जब वो रिलीज़ हुए, उनकी जब नई मूवी लॉन्च हुई, तो when we saw him we started seeing कि उनके ऊपर इन दोनों का ही बहुत अच्छा इफेक्ट है। He was of course inspired by these two idols, but कहीं ना कहीं लोगों ने then judge करना start कर दिया that this particular person or actor has lost its originality and he is somehow trying to copy, or he is somehow a copy of these two actors. ओके, सो इस कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एंजाइटी ऑफ एफ्लुएंस की बात में आपके हेरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं कि जो आपके जो न्यू राइटर्स हैं हु आर फॉलोइंग देयर प्रीडिसेसर्स, उनके वर्क में आपको कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, विच इज़ अ ब्लेसिंग एंड ऑल्सो अ कर्स। ओके, एंड ऑल्सो दिस इन्फ्लुएंस इज अनअवॉइडेबल एंड इनएस्केपेबल। आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, आप बार बार उनको देखते हैं, उनका स्टाइल आपको पसंद आता है, एंड इवेंचुअली इफ़ यू आर इनटू द सेम फील्ड, कहीं ना कहीं उस इंसान की झलक आपके वर्क में ज़रूर दिखाई देगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, who among the following this is the same question, so your answer is Harold Bloom. Okay, I hope this was clear. Who among the following coined the term aesthetics? अब दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लिक बेट। अगर आपको एस्थेटिज्म के बारे में पता होगा तो आप दो पर्टिकुलर आंसर्स में से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट्स टेक अ लुक व्हाट इज एस्थेटिक्स एंड एस्थेटिज्म। ओके, एस्थेटिक्स आपकी एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है दैट डील्स विथ नेचर, ब्यूटी एंड टेस्ट। आपने ये वर्ड आज की डेट में बहुत लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा कि इट इज़ नॉट गोइंग विद द एस्थेटिक वाइब्स। एस्थेटिक मतलब समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल, समथिंग विच इज़ नेचुरल इन टेस्ट, एंड उसका एक टाइप का क्लीन वाइब होता है। सो ये टर्म फर्स्ट कॉइन किया था अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने इन 1735। अब आपके जो इमैनुअल कांत थे, ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एस्थेटिज्म, और उन्होंने इस फिलोसफी की फाउंडेशंस को ले किया था। ओके, फिलोसफी के बारे में बात की थी, दैट मीन्स उनके दिमाग में ये टर्म आया था, ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एस्थेटिज्म, फिर ये मूवमेंट एक चला था। ओके, बट इसको टर्म किया था आपके अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने। सो यू कैन रीड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे आपके काफ़ी सारे राइटर्स का नेम दिया हुआ है जो कि इस मूवमेंट से दे वर एसोसिएटेड। Now I have put in some efforts and also brought in front of you जो इन चारों के आपके जो ये चार आपके आंसर्स हैं, इन्होंने कौन कौन से टर्म्स कॉइन किए थे, दैट ऑल्सो आई हैव रिटन। आर्थर डांटो ने आर्ट वर्ल्ड का एक टर्म था कॉइन किया था, अलेक्जेंडर बॉमगार्टन वी हैव ऑलरेडी सी, इमैनुअल कांत ने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के बारे में बात की है, डेविड ह्यूम ने कांस्टेंट कंजंक्शन के बारे में बात की है। यू कैन गो एंड फाइंड देम आउट बाय योर ओन सेल्फ, आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द नेम्स। सो इफ़ यू आर एबल टू सी स्टूडेंट्स, ये एक सही तरीका होता है पढ़ाई करने का। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, उसके 4 आंसर हैं, आपको आंसर मिल गया, आपने उसके बारे में फाइंड किया एंड उसके बारे में जानने की कोशिश की, अपने नोट्स को अपडेट किया। बाकी के जो 3 आपके आंसर्स हैं, प्लीज़ आप उनको भी फाइंड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ़
नेट इज गिविंग यू दोज पर्टिकुलर राइटर्स ऑल्सो, तो इट इज़ पॉसिबल कि वही चीज़ आपकी नेक्स्ट पेपर में या नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाए. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक व्हाट आई फॉलो कि क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस जिसने अच्छे से कर ली है उसको पुराने कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज पुराना कंटेंट आ भी नहीं रहा है. इफ़ यू गो एंड डू द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर यू विल बी एबल टू सी कि किस टाइप के बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एम्पेरिसिस्ट लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न विद. अब हम लोग ने हमारी पहली वीडियो में एम्पेरिसिज्म के स्टेप्स के बारे में भी देखा था, विच वॉज अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च. यहाँ पे एम्पेरिसिस्ट लिंग्विस्टिक्स के बारे में पूछा गया है. तो इफ़ यू नो अबाउट एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिसिस्ट लिंग्विस्टिक्स के बारे में नहीं भी पता है तो भी ये आंसर आप कर लेंगे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एम्पेरिसिज्म एक ऐसी आपकी रिसर्च की फील्ड होती है वेयर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को गेन करते हैं सेंसरी बेसिस की वजह से या फिर उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे. ऐसे ही आप हवा में किसी भी चीज़ की हाइपोथेसिस नहीं बना लेते हैं. तो अगर आप इसके आंसर्स पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू ईजिली गेट द आंसर. इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल सेंस डेटा, रीजन एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंक्वायरी और इननेट लैंग्वेज नॉलेज. ठीक है, सो आपका आंसर ये सेकेंड वाला बन जाएगा. लेट्स टेक अ लुक नाउ. व्हेन आई came through this empiricist linguistic, एक और टर्म इसके सामने आ गई. लेट्स टेक अ लुक. फिलॉसफी की फील्ड में आपका एम्पेरिसिज्म क्या कहलाता है कि नॉलेज गेन करना प्राइमरीली फ्रॉम द सेंसरी बेसिस. आपकी आंखों से जो दिख रहा है, आपको कानों से जो सुनाई दे रहा है, एनीथिंग जो आपका प्रत्यक्ष, आप पेपर 1 में भी पढ़ते होंगे. ओके, जो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, समथिंग लाइक दैट. तो आप जो भी एम्पेरिसिज्म में डिस्कवर करते हो दैट यू डिस्कवर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. अब आपके एम्पेरिसिस्ट ये भी मानते थे कि जो बच्चा होता है वो आपका ब्लैंक स्लेट होता है, दैट इज टैब्यूला रासा बर्थ के टाइम पे. एंड धीरे धीरे जब वो डेवलप करता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उसको सारी लैंग्वेज आ जाती है. एम्पेरिसिस्ट मेंटेन दैट चिल्ड्रन लर्न द सिंटैक्स ऑफ देयर लैंग्वेज बाय यूजिंग ओनली जनरल लर्निंग कैपेसिटी. जनरल लर्निंग कैपेसिटीज का मतलब अपनी सराउंडिंग्स के थ्रू, लोगों को सुन के, एक्सपीरियंस करके वो लैंग्वेज को गेन कर लेता है. इसी के ऑपोजिट में, एम्पेरिसिस्ट लिंग्विस्टिक के ऑपोजिट में आते हैं आपके नेटिविस्ट जो थे आपके चॉम्स्की. उनका क्या मानना था? वो ये कहते थे कि आपका जो बच्चा होता है उसके दिमाग में ऑलरेडी एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है. आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, LAD होता है. उसके अंदर ऑलरेडी ये जेनेटिकली होता है जिसकी वजह से वो किसी भी लैंग्वेज को या उसके सिंटैक्स को गेन कर लेता है. बट एम्पेरिसिस्ट का मानना था कि ऐसा कोई डिवाइस आप बच्चे के दिमाग में नहीं होता है. जैसे जैसे वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है वैसे वैसे उसको लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाता है. ओके, moving forward, so we have already seen the answer. Data, directly observable sense data. I hope students you are able to understand. Which of the following 2 points were emphasized by Wood's dispatch? अब ये क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके इंग्लिश एंड इंडिया वाले सेक्शन से, आपका वुड्स डिस्पैच ज़रूर आता है. सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि वुड्स डिस्पैच ने किसकी बात की है. वर्नाक्युलर लैंग्वेज की बात की है, उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन की बात की है, ग्रांट्स इन एड की बात की है, प्राइमरी एजुकेशन की बात की है, बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने बात की है. ओके, यू कैन टेक अ लुक. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपके जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच था उसका एक बहुत बड़ा रोल है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, बिकॉज इसी पर्टिकुलर डिस्पैच या डॉक्यूमेंट के बाद ही हमारे यहाँ की इंग्लिश ऑफिशियल बन गई थी. वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया गया था. एंड दिस particular document or dispatch is very important in shaping the education in India. Okay, so please take a look. आई हैव इंक्लूडेड ओवर हेयर कि इनके जितने भी पॉइंट्स थे कि इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पे बात की, हायर एजुकेशन पे बात की, वुमेन एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस था इनका वुड्स डिस्पैच का. इंडिया की तरह नहीं कि नहीं वुमेन नहीं पढ़ सकती हैं. ओके, hierarchy in education was systematized. English education, as we have already seen, English was made the medium of instruction for higher studies. Okay, vernacular languages spoken by common masses to be promoted at primary level. आपकी जो normal daily की बोलचाल की भाषा है वो सिर्फ primary level पे होंगी, but in higher classes, in higher studies, you will only be going to go through English language.
ओके टीचर्स की ट्रेनिंग पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस की थी. ओके सेक्युलर एजुकेशन ग्रांट्स इन एड, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. द लिंक ऑफ this particular PDF will be provided in your Telegram channel. Link will be given right in the description. So do go, आपको free में ये content मिल रहा है, then do go and avail yourself and take its benefit. Okay? Moving forward, we have already seen कि इन्होंने vernacular languages की बात की थी and also of female education. Do not leave Wood's Dispatch. It is very important. Coming on to our 9th question, arrange the following terms in their chronological sequence of appearance. Chronology का question तो नेट का फेवरेट है. राइटर्स दे देते हैं chronology में, उनके वर्क्स दे देंगे, उनके टर्म्स दे देंगे. chronology हमेशा आता है. In this particular question we are having 4 terms of 4 different authors. सबसे पहला है आपका dissociation of sensibility, unreliable narrator, theatre of cruelty, egotistical sublime. अब आप ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये टर्म किससे बिलोंग करता है. ओके सो लेट्स टेक अ लुक. ईगोटिस्टिकल सप्लाइम आपका टर्म था जॉन कीट्स का, जो इन्होंने कॉइन किया था 1818 में वाइल राइटिंग अ लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस. ओके अब ये लेटर किसके बारे में था? उन सारे राइटर्स के बारे में था एंड स्पेसिफिकली विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में था जो इनके अकॉर्डिंग, कीट्स के अकॉर्डिंग, वर वेरी सेल्फ सेंटर्ड फॉर देयर पोएट्री एंड देयर काइंड ऑफ नरेटिव. अगर आपको याद होगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्रिल्यूड लिखा था जिसमें उन्होंने एक पैराग्राफ पूरा डेडिकेट किया था कि हाउ देयर पोएट्री और देयर न्यू एक्सपेरिमेंट शुड बी रेड बाय द पीपल. तो इन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवरवेल्म्ड है अपनी पोएट्री को लेके एंड ही इज नॉट एबल टू सी अदर डिफरेंट थिंग्स. सो इस चीज को उन्होंने ईगोटिस्टिकल सप्लाइम में टर्म किया है. ठीक है, अबाउट अ ऑथर हु इज सो ओवरवेल्म्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड अबाउट इट्स ओन पोएट्री एंड नरेटिव. ओके dissociation of sensibility. Now I have made a very good shorts on this particular topic, dissociation of sensibility and unification of sensibility. I will provide you the link. Do go and watch. 50 आपके 60 seconds में ही कुछ बहुत easy examples देके I have explained this. Okay, so ये term आपका था T.S. Eliot का. ओके इन्होंने ये टर्म दिया था एक एसे में विच इज़ नोन एज द मेटाफिजिकल पोएट्स. बहुत लोगों को लगता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए यूज़ किया है, बट ऐसा नहीं था. मेटाफिजिकल पोएट्स एक एसे था जिसमें इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात की है. उनको कहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्स की पोइट्री में आपको यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है, दैट इज इंटेलेक्ट एंड थॉट. आप उनकी पोइट्री को पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड को भी प्रोवोक करेगा और आपकी फीलिंग्स को भी प्रोवोक करेगा. प्रोवोक मतलब अच्छी फीलिंग्स आपको देगा, दोनों चीज़ को ये हिट करेगा. वेयर एज मेटाफिजिकल पोएट्स के बाद जो आपके पोएट्स आए हैं, दैट इज आगे आने वाले 17th सेंचुरी के पोएट्स, उनकी पोइट्री डिसोसिएटेड है. डिसोसिएशन मतलब दो चीज़ों का सेपरेशन. या तो उनकी पोइट्री में आपको सिर्फ फीलिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे रोमांटिक पोइट्री में आप सिर्फ फील कर पाएंगे, दे आर सो इमोशनल, दे आर सो सेंटिमेंटल, आपको फीलिंग्स देखने को मिलती है. या फिर आप आगे के जो पोएट्स हैं उनकी पोइट्री में सिर्फ दिमाग देख पाएंगे, दैट मीन्स दे आर ओनली स्टिकिंग अप टू द स्ट्रक्चर. बहुत जो नियो क्लासिकल थे, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पोइट्री बना रहे थे. उनकी पोइट्री में इंटेलेक्ट डोमिनेटेड था और रोमांटिक्स की पोइट्री में फीलिंग डोमिनेटेड था. दोनों का आपको अमेलगमेशन देखने को नहीं मिलता था. Okay, so this term was given by T.S. Eliot in his essay of 1921. Okay. नेक्स्ट कम्स योर थिएटर ऑफ क्रूएल्टी. ये टर्म आपका निकला है एंटोन आर्टॉट के थ्रू. इन्होंने ये टर्म दिया था बिटवीन 1931 टू 1936. इस टर्म के थ्रू इन्होंने बताया कि दिस इज अ काइंड ऑफ थिएटर विच थ्रू जेस्चर्स, इमेजेस, साउंड एंड लाइटनिंग आपका जो मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंचा देता है. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा, इफ़ यू मस्ट हैव सीन मिस्टर बीन और यू मस्ट हैव सीन चार्ली चैपलिन, विदाउट द यूज ऑफ डायलॉग्स, थ्रू देयर एक्शंस, थ्रू देयर फेशियल एक्सप्रेशंस, वो आप तक मैसेज पहुंचा देते हैं एंड द ऑडियंस टेंड टू लाफ. सो दैट इज़ इन केस ऑफ कॉमेडी. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि थिएटर ऑफ क्रूएल्टी आपके ऑडियंस तक पहुंचाता है सेंस ऑफ पेन, सफरिंग, ईवल यूजिंग जेस्चर्स, मूवमेंट एंड साउंड. यहाँ पे लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाती है. ओके
अनरिलायबल नरेटर, नाउ आई हैव अगेन मेड अ वेरी गुड शॉट ऑन दिस। ये आपके वेन सी बूथ हैं जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया है अनरिलायबल नरेटर, ये बताते हुए कि अगर एक ऐसा नरेटर जिसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है या जिसका सोचने का जो बाउंड्री है वो बहुत कम है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक स्टोरी सुनाता है तो वो स्टोरी आपको एक करेक्ट मैसेज नहीं दे पाएगी, एंड इट इज़ समटाइम्स डेलिबरेटली डन बाय द ऑथर कि वो जानबूझ के एक ऐसे नरेटर को अपनी स्टोरी बताने के लिए देते हैं जो पढ़ते पढ़ते रीडर को पता लग जाता है कि ये एक सही नरेटर नहीं है, या फिर इसकी थिंकिंग बहुत छोटी है, बस अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इसने उस पूरी स्टोरी को नरेट कर दिया। हेंस ही विल नॉट बी कॉल्ड अ रिलायबल नरेटर, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना छोटा है, वो अपने छोटे पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आपको एक स्टोरी सुना रहा है, सो इट इज़ लाइकली टू नॉट गिव यू अ करेक्ट मैसेज। ओके, आई होप द क्रोनोलॉजी इज क्लियर टू यू। सो आपकी क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले आता है आपका ईगोटेस्टिकल सप्लाइन गिवन बाय आपका कीट्स, देन आपका आता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी विच इज़ गिवन बाय आपका इलियट। ओके, देन कम्स योर थिएटर ऑफ क्रुएल्टी एंटोन एंड आर्ट्रॉट ने दिया था, एंड देन कम्स योर अनरिलायबल नरेटर विच इज़ गिवन बाय बूथ। Okay, I hope this is clear. I hope you all are enjoying the questions, not only enjoying but also benefiting from it. Questions ऐसे ही आ रहे हैं, अगर बच्चे शेक्सपियर पढ़ रहे हैं अभी भी और पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, then you are again I'm telling you are making a big mistake. आप क्वेश्चन पेपर प्लीज़ उठाइए और देखिए कि कैसे पैटर्न चेंज हो गया है। ओके, Last question, who among the following represents the global spread of English diagrammatically as 3 concentric circle? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपने इस राइटर के बारे में पता होगा तो तुरंत आपको ये क्लिक करेगा, इसमें कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज नहीं की गई, यूज़ की गई है। अब जैसे आपके फर्डिनेंड de Saussure इज वेरी फेमस लिंग्विस्ट, आपके ब्रज बी कचरू वॉज अ वेरी फेमस इंडियन लिंग्विस्ट जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स दैट इज साइंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बहुत इन डेप्थ एनालिसिस की है या स्टडी की है। तो इन्होंने स्प्रेड ऑफ इंग्लिश के बारे में अपना एक मॉडल डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया विच इज नोन एज द 3 concentric circles. Let's take a look at his circle. ओके, ब्रज बी कचरूज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इन्होंने ये सर्कल दिया है इंग्लिश स्प्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। पहला बताया है इन्होंने इनर सर्कल, दूसरा बताया है आउटर सर्कल, तीसरा बताया है एक्सपैंडिंग सर्कल। प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, लेट्स टेक अ लुक कि इन तीनों में था क्या। ओके, ये दिस इज़ फेमसली नोन एज द 3 सर्कल्स मॉडल, और ये इन्होंने 1985 के अपने किसी पेपर में पब्लिश कराया था। पहला सर्कल आपके पहले सर्कल के अंदर वो कंट्रीज आ जाती हैं जहाँ पे इंग्लिश वॉज ट्रेडिशनली द फर्स्ट लैंग्वेज एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्पीकर्स बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर इनर सर्कल। आपका ग्रेट ब्रिटेन है, दैट इज़ यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे प्योर ओरिजिनल आपके इंग्लिश स्पीकर्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के अंदर वो सारी आपकी कंट्रीज़ आ जाएंगी जहाँ पे कभी ना कभी यूके ने कॉलोनियल रूल अपना किया था, ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, एंड अब वहाँ पे इंग्लिश बन गई है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, या इंग्लिश बन गई है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। सी, इंग्लिश प्लेड एंड इन द आउटर सर्कल English played an official or institutional role and were typically post-colonial nations. जितने भी post-colonial आपके nations थे वो इस particular outer circle का part बन जाते हैं कि English सबसे पहले तो traditional speakers के through start हुई, then वो पहुँची कहाँ तक, जहाँ तक आपका colonial rule होगा वहाँ तक पहुँच गई उन सारे nations के पास, जैसे कि आपके इंडिया, केन्या, सिंगापुर, जहाँ जहाँ colonial rule था। सेकेंड आ जाता है आपका आउटर सर्कल। देन कम्स योर एक्सपैंडिंग सर्कल। इसके अंदर आपकी सिर्फ वो वाली कंट्रीज आती है जहाँ पे इंग्लिश सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे पढ़ी जाती है, कि जिसको खुद से पढ़नी है फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो वो पढ़ सकता है, बट इसका कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल या ऑफिशियल रोल नहीं है। जैसे चाइना है, जापान है, वो बोलते भी अपनी चाइनीज़ एंड जापानीज़ भाषा में है, उनकी ऑफिशियल पेपर्स एंड एवरीथिंग उनका अपनी ही लैंग्वेज में होता है। तो अगर वहाँ पे इंग्लिश यूज़ की जाती है, इट इज़ बाय डिज़ायर कि आपको पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो। सो दिस वॉज वेरी ईजी। ये है आपके 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके,
सो दिस इज़ योर आंसर, ब्रज बी कचरू। इसके बारे में प्लीज़ आप और भी पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ब्रज बी कचरू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बहुत सारे और भी टर्म्स दिए हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। With that we come to the end. I hope you enjoyed the video. आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में ही देखने को मिले थे. If you have enjoyed it and आपको benefit हुआ है, then do like and subscribe to the channel because it gives me a push. It motivates me. It makes me feel happy. I should bring in front of you more content like this. Okay. So I hope you benefited from this video. We are going to meet next when we are going to see yet another third video. Okay. So do subscribe to the channel. Do not forget, and thank you.